NABARD Grade A 2024 short notice is out. We now know that the detailed notification will be coming out on 27th of July and the registration also starts from 27th of July to 15th of August. So we are having 60 days minimum for the preparation of this year's NABARD Grade A 2024 examination for phase 1 and phase 2. All the students who are aiming and dreaming for NABARD Grade A this year, definitely it's a time to pull up your socks and start your preparation. जितने भी नाबार्ड के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता ही होगा नोटिफिकेशन, वो भी डिटेल नोटिफिकेशन 27 जुलाई को आएगा. हमारे पास 60 डेज है. सो लेट्स टुडे ट्राई टू डिसाइफर ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड प्लान फॉर 60 डेज फॉर अपकमिंग नाबार्ड ग्रेड ए 2024 एग्जाम. ये सेल्फ स्टडी और स्ट्रेटजी प्लान सारे स्टूडेंट्स के लिए रहेगा. इट मे बी अगर आपने कोर्स लिया है, अगर आपने कोर्स भी नहीं लिया है, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, अगर आप एक आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट हो, अगर आप सिलेक्टिवली बस नाबार्ड ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, वेदर यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन और यू हैव नॉट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, this is one stop solution video for your self study where you can dedicate at least 4 to 6 hours per day and comfortably not only complete the NABARD grade A syllabus covering all the topics, but also it's my guarantee that you will clear phase 1 and also phase 2 examination this year. What you have to do is that nothing, you have to trust on this particular platform, you have to trust with me, as you already know I have given and cleared NABARD multiple times. So now let us talk about the strategy and plan. Yes, this I'm talking for all the students who either have taken the course or who are doing self study. So most importantly this would be a self study plan. आपके sources कुछ भी हो, चाहे कोई भी source आप यूज कर रहे हो, चाहे फिर वो कोर्स हो या फिर इंटरनेट पे कोई भी फ्री नोट्स हो या फिर आप यूट्यूब एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हो, एनीथिंग एट मोस्ट. लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग द फेज 1 एग्जामिनेशन पैटर्न. सबको पता होगा 8 sections are there. These 8 sections are actually divided. These 8 sections here, each section is divided into 2 groupings. The first group is of first 5 sections and the second group is of next 3 sections. So here when I'm talking about this red section, section 1, 2, 3, 4 and 5, which includes reasoning, English, computer knowledge, quantitative aptitude and decision making. This is your क्वालिफाइंग सेक्शन. व्हाट डज दिस क्वालिफाइंग सेक्शन सेज? क्वालिफाइंग सेक्शन ये कहता है कि आपको हर एक सेक्शन का जो सेक्शनल कट ऑफ है, यानी कि रीजनिंग का कट ऑफ, इंग्लिश का कट ऑफ, कंप्यूटर नॉलेज का कट ऑफ, क्वांट का कट ऑफ और डिसीजन मेकिंग का कट ऑफ बस क्लियर करना है. आपको इसमें ज्यादा स्कोर नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ. Previously, reasoning cutoff was almost, I think, 1.5 marks. Decision making cutoff was only 1 marks. Also, here when I'm talking about computer knowledge, here also it was almost 2 to 3 marks. So this sectional cutoffs, these are the qualifying sections. It means each section you just have to qualify. Your selection doesn't depend on qualifying section. Rather, your selection depends on merit section. And what is this merit section? Yes, the merit section includes GA, ESI, that is economic and social issues, and agriculture and rural development. The qualifying section in total is for 100 marks, where reasoning 20, English 30, computer knowledge 20, quant 20 and decision making 10. The merit section, general awareness is for 20 marks, ESI is for 40 marks and ARD is for 40 marks. आपका सिलेक्शन इस 100 मार्क्स से होता है जो कि टोटली मेरिट सेक्शन से आते हैं. दैट मीन्स योर मेरिट कट ऑफ वुड बी सेपरेट आउट ऑफ 100. आपका एक मेरिट कट ऑफ होगा जो कि 100 मार्क्स के आउट ऑफ होगा. पिछली बार ये मेरिट कट ऑफ आपका कितना था? यस, इट वाज अराउंड 50 to 54 marks. So in this way you have to just clear that merit cutoff to clear the phase 1 examination. So if you want to clear overall phase 1 exam, what you should do, आपको हर एक क्वालिफाइंग सेक्शन का each sectional cutoff क्लियर करना है. क्वांट का, इंग्लिश का, कंप्यूटर नॉलेज का, आपका रीजनिंग का, डिसीजन मेकिंग का, एंड जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका टोटली आपको मेरिट कट ऑफ भी क्लियर करना होगा. Then you will go to phase 2. We already know that earlier decision making was not there, then it was added, and qualifying section and merit section was created after adding decision making. Qualifying section is just to qualify, merit section is actually to clear the merit and go to the phase 2 exam. अब जब phase 2 की बात करते हैं, paper 1 and paper 2 is there, that is for phase 2. Paper 1 आपका English descriptive,
which has 3 questions. Question number 1, essay. Question number 2, précis. Question number 3, letter writing. These all 3 questions are for 100 marks. Similarly, paper 2 is economic and social issues plus agriculture and rural development. This completely is again for 100 marks. 50% is objective and 50% is descriptive. 30 questions come objective in nature, that is 10 ESI question for 2 marks, 5 ESI question for 1 mark, which is 25 marks from ESI objective. Again 10 ARD question for 2 marks and 5 ARD question for 1 mark, 25 from ARD objective. In total, ESI and ARD objective becomes 50 marks. Descriptive also, here you will see 6 questions. 6 questions में से आपको लिखने हैं any 4. First 3 questions are for 15 marks. From these first 3 questions, you have to solve any 2, which gives 30 marks. The next 3 questions are for 10 marks. You have to write again any 2, which gives you 20 marks. 30 plus 20, again 50 marks. In total, objective plus descriptive, 100 marks. In the year 2021, the descriptive part was added. These descriptive questions for 50 marks were added, and the objective questions were reduced from 65 in number to 30 in number. So now your NABARD exam also replicates your RBI grade B exam. RBI grade B बड़े भैया की तरह है, जहां पर NABARD ऑलवेज एग्जाम पैटर्न से लेके विजन से लेके सारी यहां पर चीजें सेम टू सेम आपको आरबीआई जैसी दिखेंगी. नॉट ओनली दैट, अगर आप सिलेबस देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% सिलेबस यहां पर आपको ओवरलैप दिखेगा. ईएसआई कंप्लीटली ओवरलैप, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी ओवरलैप, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी हद से ज्यादा ओवरलैप. ओनली एआरडी इज द पार्ट which is different, and in some of the qualifying section जैसे कि कंप्यूटर अवेयरनेस डिसीजन मेकिंग का पार्ट भी आपके मैनेजमेंट आरबीआई में है. तो इस तरह से ओवरलैप बहुत ही ज्यादा है. नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस, एक बार ये बात कर लेते हैं दैट वी आर हैविंग जस्ट 60 days with us, right? We are having 60 days with us for our preparation. So now we will be looking at a broader timetable and a detailed timetable. यानी कि एक मैक्रो टाइमटेबल देखेंगे एंड माइक्रो टाइमटेबल भी देखेंगे. So we'll look at both macro and micro timetable. So first let us jump and understand कि ये एक बार आपका syllabus as well as overall exam pattern है, वो एक बार देख लो. This is your phase 1, this is your phase 2. Now let us jump for your macro plan. Before going to macro plan, मैं ये सबको बता दूं, we are not only just going to discuss macro plan, मैं आपको properly एक detailed micro plan भी देने वाला हूं, which is here. This is the micro plan which I am going to share with you guys. ये पूरा माइक्रो प्लान है, डिटेल्ड है, 60 डेज का है. हर एक दिन, हर एक घंटे, हर एक ब्रेक्स के बाद कितने कितने घंटे दिन में आपको पढ़ाई करनी है, एआरडी का कितना पढ़ना है, ईएसआई का कितना पढ़ना है, रिवीजन कितना करना है, टेस्ट कब देनी है, पीआईबी कितना करना है, करंट अफेयर्स कब करना है, जीए कब करना है. एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन डिटेल. यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, ब्लाइंडली, आपको ब्लाइंडली लेकिन डिलीजेंटली ये आपको टाइम टेबल डेफिनेटली फॉलो करना है. तो अगर डिलीजेंटली इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा दैट दिस टाइम टेबल इज वेरी रिगरस. लेकिन अगर इसको फॉलो करते हो, इन टॉपिक्स को अगर डे बाय डे, अगर मिनिमम 4 आवर्स एंड मैक्सिमम 6 आवर्स भी अगर एग्रीकल्चर ओवरऑल इस नाबार्ड की पोजीशन को या फिर एग्जाम को देते हो, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है. इस टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट, for all of the students who are feeling that in last 60 days sir self study तो हो नहीं पाएगी, we need something support from your side. आपकी तरफ से आप क्या दे रहे हो? So don't worry guys, we already at Oluboard we have launched a specific course for all of the students who are preparing for NABARD grade A this year. आपको कुछ नहीं करना, आपको बस Oluboard की वेबसाइट पे जाना है. Just go on the website, go on the regulatory bodies section. अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम सेक्शन में जाओगे तो यहां पर आरबीआई के पहले कोर्सेज है, आरबीआई के बाद अगर आप देखते हो तो सेबी के कोर्सेज है, एंड देन यहां पर नीचे यहां पर नाबार्ड का कोर्स है. और यहां पर आप देख सकते हो अ स्पेशल 60 days नाबार्ड ग्रेड ए 2024 क्रैश कोर्स फॉर फेज 1 एंड फेज 2 वी हैव लॉन्च्ड. व्हाट इज दिस कोर्स अबाउट? यस, दिस कोर्स इज नथिंग बट हाउ वी आर गोइंग टू कवर द वास्ट सिलेबस ऑफ नाबार्ड, all the sections included, all the subjects included from phase 1 and phase 2 point of view. All the classes are live. If you see interactive sessions for ARD, ESI, Quant, Reasoning, English,
सारी चीजें आपको कवर्ड मिलेंगी इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में। यही नहीं, यू विल गेट ऑल द डिटेल्ड नोट्स ऑल्सो फॉर ESI ARD, करंट अफेयर्स कैप्सूल्स भी मिलेंगे फॉर GA, स्पेशल सेशंस फॉर एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स भी कवर किया जाएगा। नॉट ओनली दैट, हियर यू विल बी ऑल्सो गेटिंग नोट्स फॉर सब्जेक्ट्स लाइक डिसीजन मेकिंग एंड इवन योर कंप्यूटर नॉलेज। मॉक टेस्ट भी आपको टॉपिक टेस्ट से लेकर, सेक्शनल टेस्ट से लेकर, फुल लेंथ टेस्ट से लेकर सारी चीजें फॉर फेज 1 एंड फेज 2 मिलेंगी। दिस इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। I will be there here to complete your agriculture and rural development also, as well as I will be full time available for all of you guys. तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, डेडिकेटेडली इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर नाबार्ड ग्रेड 2024 एग्जाम, go and definitely check out the course. Right now the offer is also going on. Don't miss this opportunity. I hope you understand. नाबार्ड this time, एक अंदर की बात भी बता देता हूं, 100 वैकेंसीज नाबार्ड हैज ब्रॉट, एंड फॉर your general category 45 सीट्स आर देयर। RBI से भी ज्यादा जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स है, और ओवरऑल वैकेंसीज भी RBI से ज्यादा है, 100 वैकेंसीज फॉर नाबार्ड। तो दिस टाइम आई वुड से सी RBI is also an opportunity, but at the same time NABARD is also very big opportunity. Do not miss it. RBI को भी मिस नहीं करना है, लेकिन साथ साथ NABARD को भी मिस नहीं करना है। एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग डेडिकेटेडली फॉर NABARD, आप तो बिंदास अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आई एम देयर फॉर यू। विल ऑल्सो स्टार्ट स्पेशल सेशंस on YouTube channel, both of our YouTube channel, agriculture also as well as regulatory bodies also. Please let me know what series I have to bring for you. मुझे बताइए, रिकमेंड करिए, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मैक्रो प्लान विच आई टोल्ड यू, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स मैं जानता हूं फ्री की चीजें भी आप सबको चाहिए, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो ये हमारा मैक्रो प्लान है, सिंपल। मैक्रो प्लान टेल्स हमारे पास कितने महीने, 60 डेज, तो 1 मंथ 2 मंथ हो गया हमारे 60 डेज, एंड हियर आफ्टर फेज 1 एग्जाम एक हमारे पास और एक महीना रहेगा, मतलब 30-40 दिन रहेंगे फॉर फेज 2 एग्जाम, है कि नहीं। पहले इन 60 डेज का टाइम टेबल हमें आज देखने वाले हैं। सी, इन फर्स्ट मंथ इट इज वेरी वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि नाबार्ड का ओवरऑल फाउंडेशन क्या है। इन फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम द पिलर्स ऑफ नाबार्ड आर ESI एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ESI पूरा करंट अफेयर्स आता है, which includes PIB, government schemes as well as government schemes from Ministry of Agriculture and agricultural current affairs पकड़ लो, ठीक है। Whereas ARD जब आप देखोगे, ARD पूरा स्टैटिक रहेगा। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स भी ARD में आता है, लेकिन वो बस 3 से 4 मार्क के लिए आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। दिस शोज यू दैट ESI इज करंट ओरिएंटेड, ARD इज स्टैटिक ओरिएंटेड। तो प्रिपरेशन भी वैसी ही होनी चाहिए। फर्स्ट मंथ यू विल प्रिपेयर फॉर ARD एंड ESI, वेर यू विल कवर ऑल द स्टैटिक सिलेबस फर्स्ट, सारे चैप्टर्स को कवर करना है। And this ESI and ARD preparation should be from phase 1 as well as phase 2 point of view. phase 1 में 40 मार्क्स का ESI ARD है, phase 2 में तो 100 मार्क्स का ESI ARD है। तो लाइटली लेना नहीं है, आपका सिलेक्शन ना ही ARD के ऊपर है ना ही ESI के ऊपर है, दोनों के ऊपर है। यू कैन नॉट मिस ESI, नीदर यू कैन मिस ARD। आपको दोनों में अच्छे से परफॉर्म करना है। ESI इज करंट अफेयर्स, सो PIB एंड गवर्नमेंट स्कीम्स तो आप कर लोगे, लेकिन ARD में क्या, नो वरीज, वन स्टॉप सोल्यूशन। दिस is the solution, that is, yes, follow me both on both of the platforms, Olive Agri Coaching as well as Olive Regulatory Bodies, दोनों जगह पर फॉलो करो। I will make it sure this year आपका नाबार्ड जर्नी अगर किसी भी वजह से रुक रहा है, you will definitely sail through, ठीक है। Now sources क्या रहेंगे, see sources you will have your own। अगर आपने कोई कोर्स परचेस किया है तो वो होगा, अगर आप YouTube पे कहीं पर डिपेंड कर रहे हो तो वो होगा, अगर नहीं है वो, देन हियर सम बुक्स हैव बीन रिटन। पहले तो ARD के लिए अरुण खात्याम इज रियली गुड, पार्ट 1 पार्ट 2। निम्रत सुंदा भी बहुत अच्छा बुक है, जहां पर सम पार्ट्स लाइक हॉर्टिकल्चर हो गया या फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सारी चीजें निम्रत सुंदा में बहुत अच्छे से कवर्ड है। वी ऑल नो दैट ARD स्टैटिक की जब बात होती है तो एग्रोनॉमी, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, फार्मिंग सिस्टम, मेट्रोलॉजी, उसके बाद आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन, सॉइल साइंसेस, सीड प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ये सारे चैप्टर्स हो गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस यू हैव टू कवर इन ARD। इन ESI ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टैटिक चीजें ESI की इंपॉर्टेंट है, मानते हैं, बट एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ESI अगर स्टैटिक कवर करना है तो नितिन सिंघानिया छोटी सी बुक है, अच्छे से कवर कर लेना। इफ नॉट, डेफिनेटली लक्ष्मी मैम को आप फॉलो करो। इफ यू हैव नॉट परचेज द कोर्स, मैंने ऑलरेडी कोर्स के डिटेल्स दे दिए। लक्ष्मी मैम के क्लासेस भी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। 1 अगस्त को हमारा नाबार्ड ग्रेडेड 2024 क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अगस्त के पहले डेफिनेटली एनरोल कर लो। बाद में मत बोलना कि सर लाइव क्लास मिला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, हियर यू कैन इवन कवर द ESI थ्रू बुक्स ऑल्सो, बट एज यू नो रमेश सिंह, सीराम IAS, ये सारे जो नोट्स है
दीज आर मोर देन 600 पेजेस। 60 दिन में 600 पेजेस को कवर करना है, एक दिन में 100 पेजेस कैसे पढ़ पाओगे? रादर देन दैट हमारे जस्ट 40 to 50 लेक्चर्स होंगे ईएसआई के, सारा ईएसआई आपका कवर हो जाएगा। सिमिलरली एआरडी के भी 50-40 लेक्चर्स होंगे, सारा एआरडी कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए पीआईबी डिपेंड करना है तो ऑलीवुड रेगुलेटरी चैनल्स पे पीआईबी कंपाइलेशंस चालू हो चुका है, फॉलो इट ब्लाइंडली। गवर्नमेंट स्कीम्स भी मंथ वाइज चालू हो चुके हैं, just follow it blindly. And then other thing is GA. For GA also we have started compilations. Next is the second month. Second month mein if you see phase 1 sections you have to concentrate, quant, reasoning. For computer knowledge and decision making, make sure that you will not be wasting more than an hour daily. See, only in 5 to 6 days you can just finish one subject is computer awareness and decision making. You don't need to give daily एक घंटा decision making and computer awareness को देने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे सब्जेक्ट है, डिसीजन मेकिंग 10 मार्क का है, कंप्यूटर नॉलेज आपका 20 मार्क का है। अगर आप 5 दिन भी प्रिपेयर करते हो आपका हो जाएगा। देन कम्स मॉक्स एंड रिविजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज द सिलेबस इज वाइड, मॉक्स एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टेस्ट जो है वो आपको एवरी 3 to 4 डे देनी है। सो 3 to 4 डे डन सिलेबस, then 4th or 5th day you have to give a test. Similarly, after phase 1, yes, you have to do phase 2 oriented preparation which includes descriptive answer writing, वो हम बाद में ले आएंगे। In this 60 days which we are talking, right? In this 60 days which we are talking, try to understand, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा in this 60 days that there are 4 types of aspirant। एक तो बैंकिंग एस्पिरेंट हो गए जो कि बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरे बैंकर्स हो गए who are already working in banks। तीसरे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो गए विच आर द स्टूडेंट्स हु गेव दिस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम बट दे कुडंट मेक इट। फिर फ्रेशर्स हो गए और एक 5th कैटेगरी भी है, वो है आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज योर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर फर्स्ट 15 डेज इन 60 डेज। पहले 15 डेज में क्या करना है मैंने पहले बताया, दीज आर ऑल योर चैप्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपको मॉर्निंग में करना है और इवनिंग में आपको करंट अफेयर्स करना है विच इंक्लूड्स पीआईबी एंड टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स, टॉपिक बेस्ड विच इज ओनली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। जून का फिर जीए करना है, जैसे कि आपको मंथ वाइज आपको करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। सो जून का कर लिया, मई का कर लिया। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, in this way you can definitely follow and complete your overall GA also, that is general awareness also, and PIB also. The next 15 days, first 15 days you will be doing ARD, next 15 days you will be doing your ESI along with the the remaining months current affairs. आपको जनवरी से लेके आपको करना है करंट अफेयर्स डेफिनेटली टिल जुलाई अगस्त तक आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, पीआईबी, गवर्नमेंट स्कीम्स और जीए। देन इफ यू सी नेक्स्ट आपके जो डेज होंगे, हियर ईएसआई ही आपको 30 डेज तक करना है। इसको करने के बाद 30 डेज रिमेनिंग योर next 30 days whatever are there, in this we also have to cover some of the important reports and indices। और जो यहाँ पर दिए गए हैं reports and indices, yes here we are talking about यूनियन बजट करना है, एजुकेशन पॉलिसी करना है, सेंसस करना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करना है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करना है। these are the reports which you have to do, these are from ESI point of view। and here if you see these are your agricultural point of view, जैसे कि हैंडलूम सेंसस हो गया, आपका हो गया एग्री सेंसस, नाफिस सर्वे, 20th लाइफ स्टॉक सेंसस, माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट, जीडीपी फॉरकास्ट एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को आपको कवर करना पड़ेगा। एंड इफ यू सी डिटेल टाइम टेबल फॉर सेकंड मंथ, दिस हैज बीन आल्सो गिवन हियर विच इंक्लूड्स क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आप फिर सेकेंड मंथ में स्टार्ट करोगे। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स आप क्वांट कर लेना पहले 10 दिन में, नेक्स्ट 10 डेज आपको रीजनिंग करना है, एंड नेक्स्ट 10 डेज आपको करना है पहले वो 5 दिन कंप्यूटर अवेयरनेस को, 5 दिन डिसीजन मेकिंग को। सो your remaining whatever 30 days are there, 10 days you give for competitive your quantitative aptitude, reasoning के लिए 10 दे देना, 5 for computer awareness and 5 for decision making, इसमें आपका ये कवर हो जाएगा। You can also do like this, quantitative aptitude को 7 days दे दिए, reasoning को आपने 8 days दे दिए, and 3 days आपको computer awareness and decision making के लिए दे दिए, but that will be really less। rather than that do 10-10-10 split, क्योंकि आपके पास पूरा एक महीना रहेगा। फिर लास्ट आपके जो 10 डेज और 12 डेज रहेंगे उसमें आप रिवीजन करना, दैट इज स्टैटिक एआरडी रिवीजन, करंट अफेयर्स ईएसआई रिवीजन। एवरी थर्ड डे इन योर प्रिपरेशन शुड बी गिवन टू योर टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, एंड लास्ट 7 days शुड बी गिवन फॉर योर फुल लेंथ टेस्ट।
तो इस तरह से आपके 60 डेज आपको कवर करना है। आपको क्वांट प्रिपेयर करते वक्त these are the overall days and how and which topics to cover, these have been given here. Similarly, here when you are talking about reasoning, these are the topics and these are the days which have been given. वीडियोस को पॉज करके डेफिनेटली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, विच वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। देन यहां पर आप देख सकते हो अगेन इंग्लिश के लिए ये आपके टॉपिक्स एंड दीज आर द डेज। सिमिलरली डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस में यहां पर खड़ा रहता हूं, अंडरस्टैंड दीज आर द टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लो यहां पर। दिस यू हैव टू कवर इन 3 days और 5 days ऑल्सो यू कैन पुट। ओके, तो इस तरह से इन 60 days वी कैन कवर। पहले 30 दिन क्या करना है, ESI ARD करना है। नेक्स्ट वाले 30 दिन क्या करना है, ESI ARD का रिवीजन अलॉन्ग विथ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग प्रिपरेशन एंड मॉक्स। तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी रहेगी। देन हियर इफ यू सी, ये आपका फेज 1 का बाद का टाइम टेबल है, वेरी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग ऑल्सो वी विल बी डूइंग प्रैक्टिस एंड MCQ practice and mock tests also we'll be giving. So overall, this is the detailed timetable when we are talking about mock test analysis कैसे करना है, 2 घंटे की टेस्ट देनी है and 2 hours specifically you have given to analysis. Which question was wrong, why it was wrong, which was correct, and did you apply the right logic, why it was correct. Similarly, answer writing also here, as you know, Olio board we provide 15 descriptive answer writing test with expert evaluation. तो feedback भी मिलेगा. Check out the course, don't miss out the big opportunity. These are the things which you have to do and these are the things which you have to avoid. सिलेबस साथ में रखना है whenever you will prepare, क्योंकि ओवरऑल नाबार्ड का जो सिलेबस है इट्स वाइड. Revision has to be given every day because as the syllabus is wide, you have to remember what you are doing. And mock test should not be forgotten. Focusing syllabus strictly, that is very important. नाबार्ड में मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे फेल इनटू द ट्रैप ऑफ PhD प्रिपरेशन। वो PhD करना चालू कर देते हैं टॉपिक्स पे, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। टेस्ट देना ही देना है एंड रादर देन राइटिंग 1 आंसर अ डे यू हैव टू गिव अ टेस्ट इन 2 to 3 days, यानी कि बल्क आंसर राइटिंग करनी चाहिए रादर देन राइटिंग 1 आंसर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मेन थिंग विच इज योर ओवरऑल प्लान विच आई शेयर्ड विथ यू। सो लेट मी शो यू द प्लान एंड गाइज इफ यू वांट दिस प्लान फॉर फ्री, definitely our paid students get this plan, so I will also make this plan available for you in this video's detailed description as well as in the comments you will get this plan. आप देख सकते हो day 1 cycle 1 is nothing but the 30 minutes in morning which you are giving. पहले 30 मिनट आप इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर कर रहे हो पहले दिन, फिर आप 15 मिनट्स का ब्रेक लेके दूसरी साइकिल यानी कि 30 मिनट नेक्स्ट क्वांट करोगे। यहां पर आप कोई भी एक टॉपिक जैसे कि आप चूज कर सकते हो DI, आप चूज कर सकते हो कोई भी सिंपल इंटरेस्ट और वो भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट 30 मिनट्स आप थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो। देन इन इवनिंग व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन गो फॉर अ टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम रिलेटेड टू ESI. देन इन इवनिंग एज आई टोल्ड यू करंट अफेयर्स करना है विच इंक्लूड्स PIB, जनरल अवेयरनेस एज वेल एज गवर्नमेंट स्कीम्स, and you have to couple it again by 30 minutes, yes, which is agriculture oriented current affairs and GA. ओवरऑल देखोगे तो मॉर्निंग में 1.5 hour प्रिपरेशन एंड इवनिंग में 1.5 hour प्रिपरेशन विच इज एवरेज 5 hours ओनली। तो 4 से 6 घंटे ही प्रिपेयर करना है फॉर दिस 60 days एंड नाबार्ड ग्रेड A 2024 एग्जाम इज योर्स। दिस इज योर टाइम टेबल फ्रॉम day 1 to day 60। तो 60 days तक आप यहां पर देख सकते हो। Here you could see here लास्ट के जो कुछ दिन है, here for last 7 to 8 days डिसीजन मेकिंग पूरी तरह से आप कर रहे हो। सिमिलरली यहां पर लास्ट 7 to 8 days यहां पर आप कंप्यूटर अवेयरनेस कर रहे हो। तो कोई भी टॉपिक मिस नहीं हुआ है। फुल लेंथ टेस्ट के लिए भी टाइमिंग दिया है यहां पर, आप देख सकते हो। सेक्शनल टेस्ट के लिए भी आफ्टर एवरी 4 days, जस्ट वॉच इट गाइज। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सेक्शनल टेस्ट 9, सेक्शनल टेस्ट 8, इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से यहां पर ये टाइम टेबल बनाया गया है। This is a one-stop solution, so don't worry. For the paid student, you will be definitely getting it, and not only that, we will cover all the chapters in this way for the paid student, and for all the students who are looking out for a perfect plan for 60 days, this is your go-to plan. Check out the course today. Go and check out the detailed course. I have told everything about the course, and yes, the offer will also expire. That's why this is a huge opportunity for all the students to check out the course. Our course would be completely English in nature, but at the same time, whatever we teach will make it sure कि उतना हम पढ़ाए जिससे आपका phase 1 phase 2 आराम से क्लियर हो जाए। ESI ARD included, everything included. Thank you very much and see you next time.